Hello, friends. Let's start another chapter of Group 2 accounts, advanced accounts, that is banking companies. Now, there are so many types of banks. What is bank's basic purpose? They act as a agent of money. They collect money from those people who want to keep it safe and they lend money to those people who are in need of it. And the differential interest income is their income. But now bank has entered into a lot of other activities. But for our syllabus purpose, let's concentrate on what we are supposed to learn. Then there are commercial banks, non-commercial bank, cooperative banks, private sector banks. All banks are generally scheduled banks. Scheduled means those banks which are governed by RBI, and unscheduled banks which are not governed or controlled by RBI. So if you keep money in unscheduled bank and the bank is declared insolvent, RBI does not take responsibility of it. Suppose if I keep in BCI, HSBC Hong Kong, scheduled, unscheduled. Unscheduled for India because RBI does not take any responsibility of bank sitting in abroad. Sikkim Bank in India is unscheduled bank. So there are banks. So we are basically supposed to learn preparation of financial statements of banking sector. Now before going into exact final accounts of banking sector, let us understand first the few adjustments which were required for preparation of final accounts. Correct? So basically into accounting for commercial banks. Now, adjustment 1. What it says? Income, recognition. Bank's major source of income is what? Interest income. Correct? Because whatever the money they get, they either give it as loan or invest it. So both from loan as well as from investments, they generate interest income. How should you recognize interest income? So whatever they invest or whatever they have given loan, that is basically debtors of bank, loans and advances. Those loans and advances are classified into two parts, performing assets and non-performing assets. If any loan has crossed 3 months or 90 days of non-payment of installment or interest, then such loan is classified as non-performing asset. If any loan or advance by bank has not paid interest and installment past 90 days, then such loan and advances are classified as are classified as
non-performing asset. Non-performing asset in locally is also sometimes called by banks as subprime assets. Correct? Now, income recognition criteria for performing assets. We follow accrual basis, that is income earned, that is income earned and whether received or not received. Correct? For non-performing asset, criteria is cash basis, that is income when received. Correct? Now charted on this basis, let us look at question number 1. Following are the statement of interest on advances in respect of performing and non-performing assets of Madura Bank Limited. Find out the income to be recognized for the year ended 31st of March 2011. Cash credits and overdraft. Performing assets. We'll take earned term loan, earned bills purchase earned. This is non-performing assets, so we'll take received. Correct? We are supposed to calculate. We're supposed to calculate income. Now, question 1. Income calculation. Total. First is cash credit and overdrafts.
non-performing, it's 1800. There's a printing error, 10 is printed extra. And cash credit mein it is non-performing mein 70, total 1870. Term loan means long-term loan. Earned is performing asset mein 480, non-performing asset mein 40, total is 520. $736. 736. 2980 for performing. 146. 3126. Correct? Yes, sir. हाँ, अब पढ़ते हैं adjustment 2. Bills discounted and rebate on bills discounted. Now आराम से देखिए. This is 1st of February 1990. Ram discounted 3-month bill of rupees 10,000 with bank at the rate of 12%. Correct? Remember, we are doing accounting in the books of bank. We are doing accounting in the books of bank. So first we calculate A. Total discount is equal to 10,000 multiplied by 12% into 3 months, that is 300. ये है क्या? बचपन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सीखते थे. राम बिल लेकर आया. राम ने कहा इस बिल के अगेंस्ट में मुझे लोन चाहिए. इस बिल के अगेंस्ट में मुझे लोन चाहिए. तो बैंक ने 3 महीने का लोन दिया. उस 3 महीने के लोन का इंटरेस्ट था 300 रुपए. बैंक ने वो इंटरेस्ट काट लिया और लोन दे दिया. बात समझ में आई? और वापस सुनिए, ये लोन था कितने का? 10,000 का. कितने का? 10,000 का लोन था. मैंने राम ने बैंक से मांगा कि भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट में मुझे लोन चाहिए 3 महीने का, क्योंकि बिल्स 3 महीने का है. तो बैंक ने उसे 3 महीने का लोन दिया, मगर उस 3 महीने का लोन का इंटरेस्ट लगा 300 रुपये, वो बैंक ने काट के दिया. अच्छा, तो बैंक ने एंट्री क्या पास की होगी? बैंक ने जर्नल एंट्री पास की. कैश अकाउंट डेबिट 9,700. नहीं, बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट 9,700
10,000 बैंक के पास बिल आ गया, टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 300, टू कैश 9,700। बिल्स डिस्काउंटेड भी बोल सकते हैं, कस्टमर भी बोल सकते हैं। तो बैंक ने उसे 9,700 दिया और 3 महीने का इंटरेस्ट लिया। ये 3 महीने का इंटरेस्ट कब जाके खत्म होगा? 31 मार्च 1990। 30 अप्रैल 1990, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने। तो यहाँ पे हो गए 2 महीने, यहाँ पे हो गया 1 महीना। तो क्या ये पूरी की पूरी डिस्काउंटिंग इनकम बैंक अपने पीएनएल में बुक कर देगा? नहीं सर, सिर्फ 2 महीने की बुक करेगा। तो उसने डिस्काउंट क्रेडिट तो कर दिया कितना? उसने डिस्काउंट क्रेडिट कर दिया कितना? 300 रुपये सर। तो 300 रुपये में से हम लोग निकालते हैं यहाँ पर 1 महीने का डिस्काउंट। इस 1 महीने के डिस्काउंट को हम लोग बोलेंगे rebate on bill discounted, which is nothing but pre-received income, which is nothing but pre-received income। ठीक है ना? 1 महीने की इनकम निकालनी है तो कैसे निकालोगे? 10,000 इंटू 12% इंटू 1/12 कितना आया? 100। ये जो 1/12 लिया है ना आपने, ये 1 क्या है? पीरियड ऑफ बिल पीरियड ऑफ बिल आफ्टर ईयर एंड। ठीक है ना? हाँ सर। दूसरी बात ठाकुर, ध्यान से सुनिए। उसी तरह से लास्ट ईयर भी कुछ होगा जो इस साल से रिलेटेड है। जैसे 300 रुपये इस साल हमें मिले, जिसमें से 100 रुपये अगले साल के हैं। हाँ, इस 100 रुपये में डिस्काउंट रिसीव्ड से निकालूंगा और हटा दूंगा। हाँ, एंट्री क्या पास करूंगा? सर एंट्री आप पास करोगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू rebate on bills discount 100 rupees। डिस्काउंट रिसीव टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, ये हमारी लायबिलिटी हो गई। हाँ, वैसे ही ओपनिंग रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, सपोज 50 रुपये है, तो वो लास्ट ईयर की लायबिलिटी थी, इस साल की इनकम हो गई। हाँ सर, लास्ट ईयर की लायबिलिटी थी, इस साल की इनकम हो गई। तो जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? सर लायबिलिटी को हटाओगे। करेक्ट, लायबिलिटी को हटाओगे तो डेबिट करोगे या क्रेडिट? सर डेबिट। और ये इस साल की इनकम बन जाएगी। हाँ, तो इनकम को डेबिट करेगा या क्रेडिट? सर इनकम बनेगी तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी विल गो डेबिट, इनकम विल इंक्रीज क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? सर जर्नल एंट्री हो जाएगी rebate on bills discounted to डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? 50। हाँ, अब ये पहली एंट्री, फिर
ट्रांसफर current year's income to PL account. Transfer current year's income to PL account. ठीक है। मतलब चार्टर्ड ये हमारी पहली एंट्री होगी, ये दूसरी एंट्री होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी फोर्थ। ट्रांसफर करंट ईयर इनकम टू पीएल। हाँ, करंट ईयर की इनकम कैसे निकालोगे सर? डिस्काउंट रिसीव 300, एड ओपनिंग rebate on bills discounted 50, correct, closing rebate on bills discounted 100, हो गए कितने? 250। और फिर जर्नल एंट्री पास करेंगे क्या सर? डिस्काउंट रिसीव्ड टू पीएनएल, $250, करेक्ट। तो 4 एंट्री हो गई और 3 कैलकुलेशन हुए। देखो, ये कैलकुलेशन 1, ये कैलकुलेशन 2 और ये कैलकुलेशन 3, बरोबर। दूसरी बात, if trial balance is prepared, please do not pass दिस जर्नल एंट्री। अगर ट्रायल बैलेंस बना दिया गया तो ये जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के पहले पास हो चुकी होगी। बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव टू कैश या कस्टमर, ठीक है ना? हाँ। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग बनाएंगे लेजर्स। एक बनेगा डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर और एक बनेगा रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड का लेजर। पहली एंट्री कित होगी? बाय बिल्स डिस्काउंटेड 300 रुपये, ठीक है। हाँ, फर्स्ट ए एंट्री का पोस्टिंग, बी एंट्री का पोस्टिंग बाय आर ऑन बीडी 50, तीसरी टू आर ऑन बीडी कितना? 100 टू पीएल 250। आर ऑन बीडी में लायबिलिटी है तो बाय बैलेंस बॉट डाउन 50, इसको इनकम में ट्रांसफर कर दिया टू डिस्काउंट रिसीव्ड। लास्ट ईयर की लायबिलिटी थी, उठा के इनकम में डाल दिया बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 50, उसको डाल दिया लायबिलिटी में, करेक्ट है? हाँ सर, समझ में आ गई पूरी बात? हाँ सर, ये था आपका पूरा तंत्र। तो जर्नल एंट्री है, कैलकुलेशन और लेजर अकाउंट है। पीरियड ऑफ द बिल आफ्टर द ईयर एंड, ये क्लोजिंग रिबेट को कैलकुलेट करने में काम आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना? हाँ सर, एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
The following is an extract from the trial balance of Overseas Bank Limited as at 31st of March 2017. Bills discounted इतना है. Rebate on bills discounted not due on 31st of March 2016. Last year का है ये. Opening R on BD है. फिर डिस्काउंट रिसीव्ड ये करंट ईयर का टोटल है. 5th जून, मतलब ये वो सारे बिल है जिसकी ड्यू डेट ईयर एंड के बाद है. तो मुझे डेज निकालने होंगे. डेज आफ्टर ईयर एंड. करेक्ट. तो 31st मार्च के बाद. तो मई में कितने दिन होते हैं सर? मई में 31 और जून के 5. मई के 31 और जून के 5 कितने दिन हो गए? 36. फिर ये है 31 प्लस जून के 12, 43 डेज. ये है मई के 31 और जून के 25, 56. और ये है मई के 31 प्लस जुलाई के 30 प्लस जून के 30 प्लस जुलाई के 6, 67. करेक्ट है? एक बार चेक करिए करेक्ट है. इसमें अप्रैल लेना भूल गए हम लोग सब जगह. मई जून लिया है. अप्रैल. अप्रैल तो अप्रैल का हो जाएगा 66 डेज. अप्रैल का हो जाएगा 66 डेज. फिर ये हो जाएगा 73 डेज. फिर ये हो जाएगा 86 डेज. 86 डेज. और ये लास्ट वाला हो जाएगा 97 डेज. करेक्ट है ना? हाँ सर. 1,40,436 282 ये सारे वो दिन हैं जो ईयर एंड के बाद हुए हैं. तो क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड हम लोग ईयर एंड के बाद वाला ही लेते हैं. हाँ सर. अब ध्यान से देखिए. Solution to question number 2. पहले क्या करेंगे? A. Calculation of closing rebate on bills discounted. Bill value 31st March to date or days after year end 31st March to maturity. फिर rate of interest C, फिर amount
A into B by 365 into C। ठीक है ना सर? बाई 365 क्यों? अरे पूरे साल का है ना। 1,40,000। फिर बिल वैल्यू इज 4,36,000। फिर 2,82,000। फिर आ गया नंबर ऑफ डेज। डेज हमने कैलकुलेट कर लिए थे, 66, 73, 86, 97 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 14%, 14%, 14%, 16%। अब इसका निकालो, 3544, 12,208, 93,082 और 17,263। तो टोटल कितना हो गया? 42,317। करेक्ट है? हाँ सर। नाउ अब हमें क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू पीएल। अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू पीएल। डिस्काउंट रिसीव जो इस साल टोटल हुआ है, डिस्काउंट रिसीव जो इस साल टोटल हुआ है वो कितना है सर? वो है 105,708। ठीक है। फिर टोटल हमने जो ओपनिंग रीबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड है वो कितना है सर? वो क्वेश्चन में है 22,160। क्लोजिंग रीबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड कितना है सर? वो है 85,551। ठीक है ना? ये पीएनएल में ट्रांसफर होगा। हाँ सर। अब हम लोग जर्नल एंट्रीज पास कर ले। यस सर। पूछा क्या है? कैलकुलेट रिवेन्यू शो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ए ट्रायल बैलेंस बन गया तो पहली जर्नल एंट्री नहीं बनेगी, दूसरी जर्नल एंट्री हो जाएगी ओपनिंग रीबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड 22,160, 22,160। बी डिस्काउंट रिसीव्ड टू रीबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड क्लोजिंग वाला 42,317, 42,317। तीसरा जो पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, डिस्काउंट रिसीव टू पीएनएल 85,551, 85,551। करेक्ट? हाँ सर। तो ये था चार्टेड हमारा रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 3। नंबर 3, तो एडजस्टमेंट नंबर 2 में हमने देखा कि जो बिल्स डिस्काउंट कराते हैं वो डिस्काउंटिंग चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है, बैंक के लिए इनकम है। बैंक उस इनकम को कैसे रिकॉर्ड करेगी? थर्ड इज क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस। तभी हम लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस देखना है। बैंक अपने एडवांसेस को कैसे क्लासिफाई करती है
एप्लीकेशन ऑफ एडवांसेस, ध्यान से देखिएगा इसको। वन 190 को 1190 advance stops paying इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, ठीक है। फिर उसने थ्री मंथ्स तक नहीं दिया, ये हो गया 31st March 90। ड्यूरिंग दिस 3 months ही इज रेफर्ड टू एज performing assets, and after this 3 months it is known as non-performing asset, correct। now अब इस परफॉर्मिंग एसेट को हम लोग स्टैंडर्ड एसेट भी बोलते हैं, करेक्ट। इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का पहले 12 मंथ्स first 12 months it is known as substandard, हो गया 31st March 91, करेक्ट। हाँ सर। फिर यहां से 1 year, that is 31st March 92, he becomes doubtful। doubtful, this is known as doubtful 0 to 1, ठीक है। फिर 31st March 92 से लेकर 31st March 94 तक D1 to 3, ठीक है ना, डाउटफुल 2 साल तक, एंड इसके बाद आ जाता है डाउटफुल ग्रेटर देन 3 years, करेक्ट। यस सर। और एक होता है लॉस एसेट, करेक्ट। तो इस तरह से एसेट का पीरियड वाइज ब्रेकअप होता है। स्टैंडर्ड एसेट में परसेंटेज ऑफ प्रोविजन, ए एग्रीकल्चरल sector and small medium enterprises 0.25%, B commercial real estate sector 1%,
अदर एडवांसेस 0.4%। खाली सब स्टैंडर्ड बोला है तो हम लोग इसको मानते हैं। अब सब स्टैंडर्ड एसेट में आ जाते हैं। ए, सिक्योर्ड है तो प्रोविजन परसेंट 15% है। अनसिक्योर्ड विथ escrow 20%, others 25%। डाउटफुल 0 to 1। डाउटफुल हम लोग सिक्योर्ड की बात कर रहे हैं। 0 to 1 year में है 25%, 1 to 3 years में है 40%, more than 3 years 100%, लॉस एसेट 100%। करेक्ट। और अनसिक्योर्ड डाउटफुल assets is equal to 100%। मतलब सब स्टैंडर्ड में 3 रेट, एग्रीकल्चर का 0.25, कमर्शियल एंड रियल एस्टेट सेक्टर 1%, अदर एडवांसेस 0.4%। सब स्टैंडर्ड में 2 रेट है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का 50, अनसिक्योर्ड में 2, विदाउट एस्क्रो, विथ एस्क्रो 20% और विदाउट इज 25%। डाउटफुल 0 to 1, 1 to 3 और ग्रेटर देन 3। अगर अनसिक्योर्ड है तो 100%। चले, हाँ सर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 करेंगे। स्टैंडर्ड 7000, सब स्टैंडर्ड includes secured exposures 1000 lakhs and balance unsecured 2500 lakh। तो इस 3000 के दो पार्ट हुए, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड है 1000, अनसिक्योर्ड है 2500। इसमें विथ एस्क्रो 1500, अदर्स हो जाएंगे 1000, डाउटफुल 1 year 500, 1 to 3 year 600, मोर देन 3 years 300, लॉस एसेट 1200, डाउटफुल अनसिक्योर्ड 1500, लॉस एसेट 200। ठीक है ना? हाँ सर। चलिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं। 3 पार्ट 2 प्रोविजन क्रिएट करते हैं। सर ये सारे प्रोविजन फंड कहाँ से आए? ये चार्टर्ड आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से है, तो हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है। ये एवरी 3 to 5 years रिव्यू होते हैं, एक्चुअल्स के बेसिस पर निकाले जाते हैं। बट ये कैसे निकाले जाते हैं उस पर हम लोग को माथा नहीं लगाना है। बहुत बड़ा डेटा जुगाड़ होता है इसके लिए। लास्ट 5 साल का एग्रीगेट कर कर एक्चुअल्स जो देखा जाता है उसके हिसाब से एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि अगले 3 से 5 साल तक क्या किया जाएगा। नाउ पहला है स्टैंडर्ड एसेट, अमाउंट कितना है, उस पर प्रोविजन परसेंटेज 0.4%। हमने
अदर्स माना है, तो उसका टोटल प्रोविजन हो जाएगा 28 रुपीज इन लैक्स। फिर क्या है, सब स्टैंडर्ड एसेट, ए सिक्योर्ड है कितना, 1000, उस पर 15% तो हो गया 150, अनसिक्योर्ड विथ एस्क्रो अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट आप लॉ में पढ़ोगे, 1500, और इस पर है 20% 300, अदर्स 1000, उस पर है 25% 250, फिर डाउटफुल, सिक्योर्ड 0 to 1, 0 to 1 500, 25% 125, फिर 1 to 3 600, 40% 240, greater than 3 years 300, 100% 300, doubtful unsecured, unsecured कितना है 1500, 100%, 1500, loss asset 200, 100%, 200, खत्म। टोटल प्रोविजन कितना हो गया 3093, ये हो गया हमारा टोटल प्रोविजन, ठीक है ना। हाँ सर, अब हम लोग चलते हैं अगले एडजस्टमेंट में। अगले एडजस्टमेंट का नाम है एडजस्टमेंट नंबर 4। प्रोविजन ऑन advances covered by ECGC and DICGC। ECGC का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। DICGC का है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, नाउ चार्टर्ड। मतलब क्या होता है, हम लोग लोन लेने जाते हैं तो गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट है जो नए बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। तो जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो वो लोग बैंक को गारंटी देते हैं कुछ परसेंटेज ऑफ अनसिक्योर्ड पार्ट के लिए।
तो वो लोग जब गारंटी देते हैं तो हम लोग प्रोविजन कैसे क्रिएट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा, अमाउंट ऑफ लोन लेस realizable value of security realizable value of security, ठीक है, लेस ECGC कवर और DICGC कवर, परसेंटेज ऑफ ए, ये हो गया अनसिक्योर्ड पोर्शन। अब हम लोग निकालते हैं अमाउंट ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन कैसे निकलेगा? रियलाइजेबल वैल्यू पर प्रोविजन होगा परसेंटेज एज पर एडजस्टमेंट 3 और जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उस पर 100%। ये हो गया हमारा टोटल प्रोविजन। करेक्ट है? हाँ सर। मतलब ये लोन थी, इसमें हम जो मैंने सिक्योरिटी दी थी वो इतनी है। सपोज 100 रुपए की लोन दी थी तो मैंने सिक्योरिटी थी 20 रुपए की, तो अनसिक्योर्ड कितना हुआ? 80। 80 में से EICGC डिपार्टमेंट ने कहा 40% मेरी सिक्योरिटी, तो बचा कितना? 32। 32 गया तो बचा कितना? 48। इस पर 100% क्रिएट कर देंगे और ये जो सिक्योर्ड पार्ट है इस पर परसेंटेज जो टेबल में दिया हुआ है, ठीक है ना, इस पर कुछ नहीं करेंगे भाई, गवर्नमेंट ने गारंटी दी है उस पर कैसे प्रोविजन क्रिएट कर ले। से लोन थी टोटल 20%, मैंने सिक्योरिटी दी है उस पर परसेंटेज के हिसाब से जो EICGC दी थी वो माइनस किया, जो बचा उस पर 100% वो अनसिक्योर्ड पोर्शन हो गया। ठीक है, हाँ चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में। ये रहा 3 पार्ट 1। पैकिंग क्रेडिट आउटस्टैंडिंग फ्रॉम फूड प्रोसेसर्स इज कितना? 60 lakhs, for which bank holds securities worth rupees 15. 40% of the above advances is covered by EICGC. The advance has remained doubtful for 3 साल। 3 साल का एडवांसेस डाउटफुल हो गए? हाँ सर। तो ग्रेटर देन 3 years हो गया? हाँ सर। अब ध्यान से देखो, पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अनसिक्योर्ड पोर्शन। कैलकुलेशन ऑफ अनसिक्योर्ड पोर्शन। लोन कितना सर? 60 lakhs।
रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इस कितना, रियलाइजेबल 15 lakhs, तो बचा कितना 45। ECGC कवर, उसने कवर कितना दिया है 40%, मतलब 18 lakhs। तो अनसिक्योर्ड कितना हो गया 27, ये हो गया अनसिक्योर्ड पोर्शन। अब प्रोविजन, प्रोविजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिक्योर्ड 15 into 100% फॉर 3 years, मतलब 3 साल खत्म हो गए, तो 15। और अनसिक्योर्ड के लिए 27 into 100%, कितना हो गया 27, टोटल हो गया 42। प्रोविजन हमारा खत्म। चलिए आगे बढ़े, चालू करो। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन हो गया आपका, हाँ सर। एक्सपोर्ट क्रेडिट गिवन 50 lakhs, ECGC कवर 40%, सिक्योरिटी इज 10 lakh बट रियलाइजेबल वैल्यू 12 lakhs है, तो हम लोग रियलाइजेबल वैल्यू लेंगे। पीरियड फॉर विच द रिमेंड आउटस्टैंडिंग, मतलब हैज रिमेंड आउटस्टैंडिंग फॉर 2 years, मतलब 1 to 3 years में गिरेगा। दूसरे में है 50%, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख है, रियलाइज वैल्यू 18 lakhs है, डाउटफुल फॉर 1 year, हैज रिमेन डाउटफुल। पीरियड फॉर विच द लोन हैज रिमेन डाउटफुल इज 1 year। पीरियड फॉर विच द लोन हैज रिमेन डाउटफुल इज 2 years कर दीजिए, इज 1 year कर दीजिए, तो इज 2 years का मतलब 2 साल एग्जैक्ट, इज 1 year मतलब 1 year एग्जैक्ट। अगर फॉर 2 years होता तो 2 years ज़्यादा हो जाता। चले, यस सर। ये है क्वेश्चन नंबर 4। 4 पार्ट 1। पहले कैलकुलेशन ऑफ अनसिक्योर्ड पोर्शन। एडवांस कितना है 50 lakhs। फिर रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, RVS, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 12 lakhs, तो बचा कितना 38। ECGC कवर is how much 40%, 48% ऑफ 38 आ जाएगा 15.2, तो अनसिक्योर्ड पोर्शन हो गया 22.8। अब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन। सिक्योर्ड कितना 12 इंटू मोर देन 2 years मतलब 40%, कितना आ गया 4.8। अनसिक्योर्ड इज इक्वल टू 22.8। अनसिक्योर्ड पोर्शन तो पूरा का पूरा आ जाएगा, कितना हो गया टोटल 27.6। फॉर पार्ट 2 कैलकुलेशन ऑफ
of unsecured portion, USP, unsecured portion. एडवांस कितना है? 75. रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, realizable value of security is 18. तो बचा कितना? तो ECGC कवर इज इक्वल टू 50% restricted to 20 lakhs. तो 20 लाख से ज़्यादा वो सिक्योरिटी देगा ही नहीं, तो कितना कितना 37. ये हो गया अनसिक्योर्ड पोर्शन. कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन. सिक्योर्ड पोर्शन है कितना? 18. कितना परसेंट लेंगे? एक साल का है तो 25% हो गया 4.5. अनसिक्योर्ड पोर्शन तो पूरा ले लेंगे 37, तो हो गया 41.5. ये हो गया आपका ECGC भी करेक्ट है. हाँ सर. अब आगे चलते हैं चार्टर्ड एडजस्टमेंट नंबर 5 में. बिल्स फॉर कलेक्शन. बिल्स फॉर कलेक्शन मीन्स चेक डिपॉजिट जो हम लोग करते हैं. अब चार्टर ध्यान से सुनो. जब हम लोग चेक डिपॉजिट करते हैं तो बैंक को चेक मिलता है. हाँ. बट वो पैसे फिर हमारे अकाउंट में आना चाहिए. हाँ. मगर क्या बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमारे अकाउंट में पैसे डालना? ना. तो कहीं से पैसे आने हैं, पैसे डालने हैं. आ गए तो वेरी गुड, नहीं आए तो वेरी गुड. तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बैंक अकाउंट बनाती है. तो इसमें देखो एंट्री क्या हो जाती है. पहला चेक रिसीव्ड, तो एंट्री पास करती है बिल सेंट फॉर कलेक्शन एसेट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन लायबिलिटी. बी चेक ऑनर्ड, तो भी एसेट लायबिलिटी खत्म. और डिसऑनर्ड, तो भी एसेट लायबिलिटी खत्म. बैंक रिकॉर्ड, तो चाहे बिल ऑनर हो चाहे चेक डिसऑनर हो, एंट्री हर वक्त रिवर्स ही हो जाएगी. रिवर्स एंट्री. क्यों? क्योंकि पैसे आ गए तो एसेट से पैसे मिल गए, लायबिलिटी को पैसे दे दिए, इसलिए एसेट लायबिलिटी गैप तो उल्टी कर दो, एंट्री रिवर्स कर दो, उल्टी एंट्री पास कर दो. और अगर चेक डिसऑनर हो गया तो एसेट भी कैंसिल, लायबिलिटी भी कैंसिल, तो भी एंट्री को रिवर्स कर दो. अच्छा. और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, एक ड्रामा है ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए. एडजस्टमेंट नंबर 6. एडजस्टमेंट नंबर 6 चार्टर्ड हम लोग देखेंगे किसका? तो मेरे हाथ में नीचे देखा कर, वो बोलती है दिखता है. एडजस्टमेंट नंबर 6, CRR, कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR. CRR क्या होता है?
CRR is equal to 4% of deposits. Deposits मतलब A savings, B recurring, C fixed deposit, D current account. Credit. Correct. Do not subtract current debit. बरोबर है. ये जो CRR आएगा सॉल्व करके should be with RBI करंट अकाउंट. ठीक है. हाँ सर. SLR. SLR should be 20% of deposit amount of SLR should be in cash with RBI non-current, cash with other bank, money at call and short notice, gold, investment in government securities. ये सब जगह हमारा SLR होना चाहिए. ठीक है. मतलब हमारे पास जितने भी डिपॉजिट है उसका 20% इस जगह जमा होना चाहिए. करेक्ट. इफ ये टोटल is less than 20% of deposit, then transfer money to these accounts. करेक्ट. यहाँ पे पैसे ट्रांसफर करने ही होंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम है. ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट नंबर 6. आराम से देखो. नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ते हैं. एडजस्टमेंट नंबर 7. एडजस्टमेंट 7 क्या है? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. हेल्ड टू मैच्योरिटी, held for trading or sale.
हेल्ड टू मैच्योरिटी होगा तो वैल्यू एट कॉस्ट, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होगा तो एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ठीक है, हाँ सर। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट एडजस्टमेंट में। जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। एडजस्टमेंट 8, एडिक्वेसी रेशियो, इसको हम लोग कार बोलते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। नंबर 1, इट मेजर्स रिस्क। इट मेजर्स रिस्क। कैसे मेजर करता है रिस्क? मेरे पास 100 रुपया है कैपिटल और मैंने 10,000 के शेयर खरीदे। सर कैसे? पेमेंट नहीं किया, 10,000 के शेयर खरीदे और वो 9,000, मेरे पास 1,000 रुपया है। कितना? 1,000, और मैंने 10,000 के शेयर खरीदा, उसका प्राइस 9,900 हो गया। रिस्क कितना का है अभी? 100 रुपया, क्योंकि अगर बेच दूंगा तो खाली 100 रुपया डिफरेंस का देना होगा, क्योंकि ना ही मैंने 10,000 पेमेंट किए तो मुझे 9,900 बेचने पर मिलेंगे नहीं मालिक, मुझे खाली 100 रुपया नुकसान का देना होगा। हाँ, अगर 10,000 का शेयर 9,500 हो गया तो मुझे कितना देना होगा? 500 रुपया। मतलब पॉकेट में थे 1,000 रुपये, बट मैंने एसेट खरीदी कितने की? 10,000 की। तो क्या मैं कह सकता हूँ मैंने रिस्क 10 टाइम्स ज़्यादा लिया? हाँ सर। इस रिस्क को मेजर करने के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं जिसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? टू, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल फंड डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड assets, 200 is equal to dash percentage. 3, minimum car is 9%, means with 9% of capital, bank can take risk up to rupees 100। इससे कम नहीं है, 8 रुपीज नहीं होना चाहिए। 8 रुपीज के कैपिटल पर आप 100 रुपए का रिस्क नहीं ले सकते। तो 9% मतलब कैपिटल 9 रुपया, तो आपने रिस्क लिया है 100 रुपए का। जैसे मेरे एग्जाम्पल में 10% था, 1,000 रुपए का कैपिटल, मैंने 10,000 का रिस्क लिया था। हायर कार इज बेटर, हायर कार इज बेटर। चले, नंबर 4, steps to calculate car। Step 1, calculate tier 1 capital, that is
paid up share capital, all reserves and surplus excluding revaluation reserve, less fictitious assets, less investment in subsidiary. Step 2. Calculate Tier 2 capital. Tier 2 capital कैसे निकलेगा? Undisclosed reserves (45% of undisclosed reserve) माइनस कर देंगे तो हो जाएगा टायर 2 कैपिटल। ये सारे फॉर्मेट है चार्टर्ड जो आपको याद रखना। सर ये दो टाइप के कैपिटल क्यों है? ये बैंक में दो टाइप के कैपिटल निकालने के लिए कहा है क्योंकि एक परमानेंट कैपिटल है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। जो रिजर्व्स है वो हमारा नॉन परमानेंट कैपिटल, और जो स्टेप 1 टायर 1 है वो परमानेंट कैपिटल है। 45% डिस्काउंट कर देते हैं बिकॉज ऑफ टैक्सेशन इश्यूज। स्टेप 3 रिस्क वेटेड assets. Name, amount, risk percentage, amount of risk. पहला है कैश बैंक। कोई भी कैश बैंक हो, रिस्क 0%, तो 0 बैलेंस विथ अदर बैंक। यहाँ पे आरबीआई आ जाता है, अदर बैंक। अमाउंट रिस्क 20%, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कुछ भी तो 0%, 0। अदर इन्वेस्टमेंट्स 100% रिस्क। फिर तीसरा फिक्स्ड एसेट्स 100% रिस्क है, पूरी एसेट गायब हो सकती है। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स कंटिंजेंट 100% रिस्क है। रिस्क परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेटिज्म डिसाइड किया जाता है। ईसीजी से 50% रिस्क है। नॉन फंडेड इन रियल एस्टेट 150% रिस्क है। ये जो टोटल किया ये आ गया
रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है ना। हाँ, तो कार हो जाएगा कैपिटल टायर 1 प्लस टायर 2 बाय रिस्क वेटेड एसेट्स, तो यहाँ आ गए इनटू 100, ठीक है ना। ऐसे कैलकुलेट करना है आपको, सारी वैल्यूज दी रहेगी, बस मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज से और आंसर आ जाता है। ये सारे एडजस्टमेंट खत्म हुए चार्टर्ड। अब हमें देखना है बैंकिंग का पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट बैंक का कैसे बनता है। पीएनएल अकाउंट का एक सिंपल सा फॉर्मेट है, बस वो फॉर्मेट याद हो गया, पीएनएल खत्म। एकदम सबसे पहले आ जाता है इंटरेस्ट इनकम, शेड्यूल नंबर 13, अदर इनकम शेड्यूल 14, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस शेड्यूल 15, ऑपरेटिंग एक्सपेंस शेड्यूल 16, ओपेक्स, फिर प्रोविजंस 17। ये जो टोटल आया ये बी, ये जो टोटल आया ना चार्टर्ड, ये पैट है, ए माइनस बी। सर टैक्स कहाँ गया, टैक्स हमने यहाँ पर डाल दिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन, एड ओपनिंग बैलेंस, लेस रिजर्व्स, एड और लेस डिविडेंड। ये हो गया हमारा पीएल का फॉर्मेट, करेक्ट। तो कुछ है नहीं, देखा जाए तो इंटरेस्ट अदर्स इनकम में है, इंटरेस्ट ऑपरेटिंग और प्रोविजंस ये एक्सपेंस में है, बस तीन ही चीज। और प्रोविजन तीन टाइप के होते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलरली बोलते हैं अयो अयो पापा, ये साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर सेंटेंस है। तो इंटरेस्ट अदर्स प्रोविजन, बस पीएल खत्म, शेड्यूल 13 14 15 16 17, करेक्ट है ना। हाँ सर, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बैंकिंग का लास्ट क्वेश्चन। ये रहा, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट 1820, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 750, interest on term loan, income on investment, interest with RBI, commission and brokerage transfer, interest on cash credit schedule 13, ये 13, ये 13, ये 13, ये 13, ये 14, ये rebate on bills discounted opening and discount received, इससे हम लोग 13 में यूज करेंगे। रेंट रिसीव्ड 14, प्रॉफिट 14, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट इसके साथ साथ 13 में हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड 15, ऑडिटर्स फीस 16, डायरेक्टर्स फीस 16, एडवर्टीजमेंट 16, सैलरी 16, डेप्रिसिएशन 16, पेमेंट 16 16 16 16, ये सारे 16 हैं, ठीक है ना। हाँ सर, फिर कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन एनपीए
820 अर्नड, ओवरड्राफ्ट में 450 अर्नड और 750। बट एनपीए का तो हम लोग को सिर्फ लेना है, इंटरेस्ट ऑन एनपीए इज एज फॉलोज। नॉन परफॉर्मिंग में तो खाली कलेक्टेड लेना है। तो क्या करेंगे हम लोग, परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग को अलग करेंगे, मतलब जो 820 है वो नहीं लेना है, 400 लेना है, ठीक है ना। 450 लिया हुआ है, 450 नहीं लेना है, 100 लेना है। मतलब इसमें हमने 420 ज़्यादा ले लिया है, तो इसमें से इसमें हमने कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट है 350 ज़्यादा ले लिया है, टर्म्स लोन में 500 ज़्यादा ले लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांस, सब स्टैंडर्ड एसेट पर बताओ, सब स्टैंडर्ड एसेट पर बताओ प्रोविजन कितना परसेंट है। सब स्टैंडर्ड एसेट पर प्रोविजन बताओ। क्या करते हो आप लोग सर। सब स्टैंडर्ड एसेट का प्रोविजन है 15%, 168। डाउटफुल एसेट कवर्ड बाय सिक्योरिटी फॉर 3 years, हाँ उसका प्रोविजन परसेंटेज कितना है 100%। फिर डाउटफुल एसेट कवर्ड बाय सिक्योरिटी फॉर 1 year, उसका प्रोविजन कितना होगा 24। लॉस एसेट्स का 100%, तो ठीक है ना। हाँ सर, ये सारे प्रोविजन करना है। फिर बैंक कुड नॉट कीप मोर देन 25% ऑफ एसेट्स एज हेल्ड टू मेच्योरिटी, 75% का मार्केट वैल्यू इतना है, प्रोविजन फॉर टैक्स इतना बनाना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये फिगर जो आपको दिख रहा है बैलेंस विद आरबीआई, इसको 5150 कर दीजिए। ठीक है सर, अब एक एक करके वर्किंग नोट करते हैं। सुनो, क्वेश्चन में ये जो पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन क्रैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट और इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इधर देखो। कैश क्रेडिट पर अर्नड इतना, कलेक्टेड इतना, तो हम लोग को तो कलेक्टेड लेना है, बट हमने ले लिया अर्नड, तो 420 एक्स्ट्रा है। हाँ सर, तो 420 अगर 1820 से हटा दो तो कितना आ जाएगा सर 1400। वेरी गुड। ओवरड्राफ्ट में 450 था, लेना है 100, एक्स्ट्रा कितना है सर 350, तो 350 हटा दो, 350 हटा देगा तो बचेगा कितना सर 400। टर्म लोन है आपके पास कितने का 750 और 250, तो 500 एक्स्ट्रा है, तो 500 हटा दो तो कितना बचेगा 1040। करेक्ट है। क्यों एक्स्ट्रा है, क्योंकि वो अर्नड है बट नॉट रिसीव्ड है, हमें कलेक्टेड लेना चाहिए था, हमने ये ले लिया है, तो हमने ज्यादा ले लिया है। जो जितना एक्स्ट्रा लिया है उसको हटा दो, ये एक्स्ट्रा है जो हटा दिया हमने। करेक्ट है ना। हाँ सर, चलिए वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ए, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसमें ए है इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, क्वेश्चन में है 1820 लेस
नॉट कलेक्टेड ऑन एनपीए कितना 420, तो हो गया कितना 00। फिर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बताओ कितना है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 750 है, जिसमें से नॉट कलेक्टेड ऑन एनपीए कितना है 350। और फिर है इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 1540, नॉट कलेक्टेड इसमें कितना है 500, तो बचा कितना। ठीक है ना। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रोविजंस। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन। ठीक है ना। उसमें देखो है सब स्टैंडर्ड कितना है 1120, और उसका रेट कितना है 15%, तो ये कितना 168। दूसरा है फुल डाउटफुल ग्रेटर देन 3 years कितना है। फिर डाउटफुल 1 to 3 years है 60, 40% हो गया 24। लॉस एसेट है 200, उस पर प्रोविजन है 100%, तो हो गया। और टोटल हो गया उसका 592। अब हम लोग करेंगे वर्किंग नोट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट्स। वर्किंग नोट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हेल्ड टू मैच्योरिटी, एक हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। हेल्ड टू मैच्योरिटी है 25% और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग हो जाएगा 75%। टोटल इन्वेस्टमेंट था 2750। इसको दो पार्ट में डिवाइड करो चलो। 25% कितना आएगा 687.5, और इसका आ जाएगा 2062.5, बट इसकी मार्केट वैल्यू है 2052.5। तो ये कितना हो गया, तो हो गया लॉस ऑन वैल्यूएशन 10। ठीक है ना। यस सर। अब मुझे शेड्यूल 13 इंटरेस्ट इनकम, क्या क्या आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट कितना है 1400। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 400। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन कितना है 1040। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 840। फिर है इंटरेस्ट ऑन आरबीआई कितना है 5150। और इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट कितना है, ये 186 कैसे आया। ओपनिंग आर ऑन बीडी था, नहीं डिस्काउंट रिसीव्ड बोला है, डिस्काउंट ऑन बिल्स इज 118।
प्लस 120, 118 प्लस 120, जिसमें से बोला है रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड 52 माइनस 52 आ गया 186। कैसे आया? डिस्काउंट रिसीव देखो क्वेश्चन में है डिस्काउंट रिसीव देखो क्वेश्चन में है 118। यस सर। ओपनिंग रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट से ठीक उसके ऊपर है 120। ठीक है सर। और नीचे जाओगे तो मिलेगा रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, वो क्लोजिंग है तो माइनस कर दिया तो आ गया 186। ठीक है ना, हम लोग यही सीखा था, डिस्काउंट रिसीव्ड एट ओपनिंग रिबेट लेस क्लोजिंग रिबेट। तो कितना आ गया अब? 186 के बाद क्या है? मतलब कितने आइटम है? 9016। करेक्ट है। अब आ जाओ शेड्यूल। शेड्यूल 14 इज अदर इनकम। अदर इनकम में क्या क्या है जल्दी बोलो? कमीशन, कमीशन 75, फिर रेंट रिसीव्ड हो गया 82, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कितना है? और क्या है? टोटल हो गया 184। फिर आ जाते हैं हम लोग शेड्यूल 15। शेड्यूल 15 में क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना है? 1720। और बस टोटल हो गया। फिर मुझे करना है शेड्यूल 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑडिटर फीस कितना है? 120। फिर डायरेक्टर्स फीस 250, एडवर्टीजमेंट, फिर सैलरीज 1240, डेप्रीसिएशन, फिर है प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड 280, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 140, रिपेयर्स कितना है? 50, पोस्टेज कितना है? 2480। फिर है शेड्यूल 17। शेड्यूल 17 है प्रोविजंस। प्रोविजंस, प्रोविजन में है पहला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट में, वो था 592। फिर नहीं, फिर प्रोविजन ऑन लॉस, प्रोविजन ऑन इन्वेस्टमेंट्स 10, और फिर है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब ये ध्यान से देखिएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स है 40%, यस। 40% ऑफ इनकम माइनस एक्सपेंस, यस। इनकम में आपको दिखेगा
ब्रैकेट ओपन करिए 9016, हाँ। फिर इनकम में आपको दिखेगा +184, हाँ सर। फिर एक्सपेंस है -1720। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 2480 -592 -10। 9016 +184 -1720 -2480 -592 -10। 4398, उसका 40%, 1759। तब मेरा टोटल शेड्यूल 17 हो गया 2361। अब हम लोग बनाएंगे पीएनएल। पीएल, प्रोविजन फॉर टैक्स बैंकिंग, थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि वहीं पर प्रोविजन कैलकुलेट करता है, पीबीटी नहीं निकलता वहां पर। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम शेड्यूल 13 9016। अदर इनकम 184, टोटल हो गया। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 24, प्रोविजंस 17, 23, टोटल हो गया 6561। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा? 2639। करेक्ट है। ओपनिंग बैलेंस है नील। ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये मैंडेटरी है। 25% इंटू 2639, 660, खत्म। ये आ गया 2369 माइनस 1709। वन नाइन सेवन नाइन माइनस कितना करना है? 660, 1979। ये होगा आपका पीएल। इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट हमारे रिवाइज भी हो गए जो हमने पहले किए थे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें सब कुछ आ जाता है, काफ़ी कुछ चीज़ें आ जाती है, इनफैक्ट मेजॉरिटी। और ये पूरा सम हो गया आपका। विद दैट वी कम टू एंड ऑफ अ chapter called banking. Thank you so much.